Hello friends, good evening. How are you all? I hope you all are doing well and your preparation is going good. This is the paper 4 ethics paper. So we will discuss paper 4. Now without any wasting of time we have come to the topics. Before we are going to start, you have to read all the instructions properly, and we all know that the section or the question number 9, it is my dealing topics which I have to deal in offline classes. So we wanna go to discuss what do you understand by the term voice of conscience, and how do you prepare yourself to heed to the voice of conscience. Here there are two type of demand of the question. Firstly, you have to explain what do you understand by the term voice of conscience and how do you prepare. This is the secondary question. How do you prepare yourself to heed to the voice of conscience? मतलब ये बोल रहा है आपसे कि भाई इनर वॉइस जो है वॉइस ऑफ कंसाइंस या इनर वॉइस को बताइए, और हाउ डू यू प्रिपेयर, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे टू हीड द वॉइस ऑफ कंसाइंस, टू हीड द वॉइस ऑफ कंसाइंस. नाउ वी आर कम विद अनदर additional section for your better understanding. In the ethics paper I have to provide some explanation as well. So here I want to tell you the what kind of ingredient you can implemented in the question. So here we have to discuss the understanding of the voice of conscience. क्या मतलब होता है voice of conscience? का मतलब होता है the voice of in your inner voice which give you the rightness and wrongness, which give you the inner understanding, inner sense कि what is right, what is wrong. So in this chapter, in this answer sheet, I have to write down the voice of conscience refers to an individual inner moral sense that helps distinguish between right and wrong. देखो क्या पता चला भाई, इनर वॉइस या वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है? इंडिविजुअल्स इनर मोरल सेंस दैट हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग, गलत और सही का अंतर जो है ये आपको पता चल पाए. एंड इट एक्ट एज अ मोरल कंपास. कंपास है जो डायरेक्शन बताएगा कि किस तरफ आप जा रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है. मोरल कंपास गाइडिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एक्शन बेस्ड ऑन personal integrity, values and ethical principle. Okay, now we have to just again see the pre- preparing to the heed of the voice of conscience, preparing to the heed of the voice of conscience. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग कर दी है कि how you can structure your answer and what kind of points you have to inculcate in your answer. So preparing to heed the voice of conscience. तो what is the means of preparing to heed the voice of conscience? इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा listening one's conscience requires conscience effort, self awareness and ethical clarity. Here how one can prepare, here how one can prepare to follow it. कैसे लोग जानेंगे? तो देखो लिखा है डेवलपमेंट सेल्फ अवेयरनेस, खुद से सेल्फ अवेयरनेस को डेवलपमेंट करना है. एंड आई ऑल्सो मेंशन रेगुलर रिफ्लेक्ट ऑन थॉट्स इमोशन एंड एक्शन. क्या करना है? डेवलप द सेल्फ अवेयरनेस, खुद से सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना है. कैसे सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करोगे? तो कह रहा है आस्क व्हाई आई एम मेकिंग दिस डिसीजन. अपने आप से पूछो कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस डिसीजन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन मास पीपल एज वेल एज माई सेल्फ. अपने ऊपर भी इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा. इमोशनली बैलेंस रहो. यू कैन नॉट बी टिल्टेड टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ परपेचुअल परसेप्शंस व्हिच हैम्पर्स सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप थॉट्स. तो इस तरह का थॉट आपके पास ना हो. ओके, स्ट्रेंथनिंग द मोरल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग, strengthening the moral and ethical understanding. Stick with your moral principle in the condition of under pressure. In the condition of under pressure, तो कह रहा है study the philosophy, religious teaching and ethics to develop a strong moral foundation. Read about the leaders, whistleblowers who followed their conscience. Practice mindfulness and introspection. Practice mindfulness, हमेशा पॉजिटिव बात
और इंट्रोस्पेक्शन कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, व्हाट्स गोइंग राइट, एंड नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इगोइस्टिक कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, बाकी दुनिया जो बोल रही है वो सब गलत है। तो इंट्रोस्पेक्ट भी करना है। और you all are know that introspection is the key to understand your faults। अपने फॉल्ट को अगर समझना है तो इनर वॉइस को समझना है, राइटनेस, पाथ ऑफ राइटनेस को समझना है, तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एज वेल। ओके, बिकॉज आप उंगली किसी को दिखाते हैं कि भैया आप गलत हो, तो आप गलत हो इससे पहले आपको खुद को देखना है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आई माइट बी रॉन्ग, मैं तो नहीं गलत हूं, या सम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन गेट्स गोइंग रॉन्ग वे, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी देखो। कल्टिवेट मोरल करेज। कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब यहाँ एग्रीकल्चर मत समझना। कल्टिवेट मोरल करेज का मतलब है बी रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। कह रहा है some peoples, some officers, some administrators have the tendency to listen only the positive things. Whenever they are facing critics, they are buffering, they are blasting on the administrative lower officers in hierarchy, or the officers which are in the higher पोस्ट। सो फिर नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एंड शॉर्ट टर्म गेन्स। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा ना हो कि कोई प्रेशर पड़ा और तुम बिखर गए ना, तुमने अपना डिसीजन बदल दिया। और क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म गेन्स। किसी शॉर्ट टर्म गेन्स गेन के लिए, जैसे किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने कुछ पैसा दे दिया, किसी ने पावर को प्रैक्टिस करने के लिए आपका कोई फेवरिज्म ले लिया, किसी ने आपकी बहुत तारीफ कर दी, तो इस सब से भी आपको किसी का फेवरिटिज्म नहीं करना है। इनर वॉइस ये बताता है कि आप कहाँ गलत हो। अगर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे तो यू कैन नॉट बी लिसन योर इनर वॉइस। ओके, नेक्स्ट, सीक्स एथिकल गाइडलाइंस, डिस्कस द मोरल डायलेमास विथ मेंटोर्स, एथिकल लीडर्स। किसी से डिस्कस करो कि आपके पास भाई सीक टू एथिकल गाइडेंस, डिस्कस मोरल डायलेमास विथ मेंटर्स, एथिकल लीडर्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स। जरूरी नहीं है कि मतलब ये आपके पास हो, कभी कभी आप किसी एथिकल बुक को पढ़ लिया, किसी एथिकल गाइड, या हो सकता है एथिकल गाइड का मतलब कोई ऐसा फ्रेंड हो जो बड़ा आपको क्रिटिक देता हो, उससे कुछ पूछिए, वो भी कुछ आपको बताएगा। टेस्ट योर कंसाइंस इन एवरीडे लाइफ। ऐसा नहीं है कि इनर वॉइस को टेस्ट करने के लिए आप एक महीने में एक बार रोज अपनी इनर वॉइस को चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं, बिकॉज इनर वॉइस इज समथिंग विच ऑलवेज टॉक्स अबाउट द राइटनेस, विच ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पॉजिटिवनेस। तो इसको देखना है, कैसे देखोगे, मेक स्मॉल एथिकल choices question, मतलब एमसीक्यू बनाइए। सच अ बीइंग ऑनेस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डेवलप टू हैबिट ऑफ चूजिंग द हार्डर राइट ओवर द इजियर रॉन्ग्स, एंड देन कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लोगों की जिनकी कॉपी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उन लोगों में जो कंक्लूजन को लिखने की टेंडेंसी वो अच्छी नहीं है। तो वॉइस ऑफ कंसाइंस इज द इनर गाइड दैट हेल्प्स individuals to make ethical choices. However, listening to it requires self-awareness, moral courage, commitment to the ethical principle. By preparing oneself through the reflection, education, and moral integrity, one can cultivate the strength to follow their conscience even in the challenging circumstances. Okay, now in the second question, give below the three quotation of the great moral thinkers, philosopher. For each of these quotations, bring out what it means to you in the present context. देखो लिख रहा है, there is enough on the earth for everyone's need but not one's greed. अब ये कह रहा है, ये तो गांधी जी का बड़ा फेमस कोटेशन है। तो सबसे पहले आपको इसको बताना है कि इसका मतलब क्या है। there is enough on this earth for everyone's need but not for the greed. yes, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि रिसोर्स आर एनफ फॉर दोज हु ओनली fulfill their requirements, their basic requirements. It cannot be the resources are always scarcity of resources are always for those who cross their limits, who fulfill their wants. चाहत, wants तो कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या क्या करना था आपको। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। मॉडल आंसर जो मैंने आपको दिया है उस पर देखते हैं कि भाई क्या है, मॉडल आंसर को कैसे लिखना था। देखो लिखा क्या है, महात्मा गांधी स्टेटमेंट हाईलाइट द इथिकल प्रिंसिपल of the sustainability. We all are know that
कि सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है भाई, रिसोर्सेज को ऐसा यूज करो कि देयर इज एनफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ एवरीवन नीड बट नॉट फॉर द वंस ग्रीड। अगर लोग ये समझते तो गांधी जी का प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समझते, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज बहुत जरूरी है। लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन, इलीगल अनसाइंटिफिक यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फिर क्या देखना है, principle of sustainability, fairness and self-restraint. It suggests that nature provides sufficient resource to meet everyone's basic needs. देखो अभी बात हुई है, but over exploitation driven by the greeds leads to inequality, environmental destruction and social injustice. तो देखो ये इसका इंट्रो हो गया। Okay, now we are moved to the another section or the another part. एथिकल पर्सपेक्टिव। यहां पर आप लोग गलती कर रहे थे, क्योंकि आपने क्या किया, ये तो लिख दिया पर इसके एथिकल जो पर्सपेक्टिव्स थे वो नहीं बता रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस कब करोगे भाई, जस्टिस तब करोगे जब सस्टेनेबल यूज ऑफ थिंग्स करोगे। सस्टेनेबल यूज ऑफ थिंग्स कब करोगे भाई, जब आप केवल और केवल किसी रिसोर्स को, किसी चीज को उतना ही यूज करोगे जितना आपको नीड है, अपने ग्रीड के लिए उसे यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। वी ऑल आर नो दैट कि रिसोर्सेज उतने ही यूज करने हैं जितने में आपका नीड पूरा हो जाए, नॉट फॉर द ग्रीड। ओके, नेक्स्ट कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज कल्पना करो कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, तो वो डैमेज कर रहे हैं, और जो पुअर क्लास है उसका तो कोई बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो भाई कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो रिच पीपल्स हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वही ग्रीन हाउस गैसेस का मोर इमिशन कर रहा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी को कुछ दें अपने ग्रीड के कंपेयर में। ओके, पर्सनल एथिक्स एंड minimalism. Ethical living promotes the containment and responsible consumption rather than materials greed. Example, a person, देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिए, a person who buy multiple luxury cars for the status while many lack basic transport is an example of greed. एक आदमी के लिए एक कार जरूरी थी पर मल्टीपल कार रख लिया, 10 से 15 कार रख लिया, अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहा है, एक सूडो स्टेटस को मेंटेन कर रहा है सोसाइटी में। और क्या कह रहे हैं, ethical living would mean purchasing only what is necessary and contributing to the society. देखो ये भी हो गया क्वेश्चन, कैसे लिखना था, क्या क्या डालना था, ये भी आप ध्यान में रखिए, ये पीडीएफ आपको इंस्टीट्यूट अभी दे देगा। ओके, नाउ next question. Nearly all man can withstand adversity, but if you want to test man's character, give him power. अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि अगर किसी आदमी का कैरेक्टर जानना है कि वो कितना जो है मोनार्कियल हो सकता है, कितना जो है ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, तो गिव हिम पावर एंड टेस्ट द रियल कैरेक्टर ऑफ द मैन। मैन का रियल कैरेक्टर तब आएगा, ऐसे तो सब लोग विमेन वेलफेयरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सब लोग जो है बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर दो इनको पावर और देखो इनका रियल टेस्ट इनका कैरेक्टर की। ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर करप्शन है, अपना ग्रीड है भरने का, ठीक, या पावर आने के बाद इनके अंदर एक तरह का मोनार्किज्म आ गया, एक तरह का हिटलर पर्सनालिटी निकलकर आ गई। तो कह रहा है अब्राहम लिंकन ने कहा कि भाई इफ यू वांट टू टेस्ट मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। देखो इसमें क्या लिखना था, क्या कह रहा है, नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट मैन्स कैरेक्टर गिव हिम द पावर। तो दिस कोटेशन ऑफ अब्राहम लिंकन हाइलाइट्स एसेंशियल एथिकल प्रिंसिपल। ओके, पावर रिवील्स द ट्रू कैरेक्टर while many people show resilience in hardship, the real test of integrity comes when, देखो कितना बढ़िया लाइन है, the real test of integrity comes when they hold power. Power can be used ethically for the good of others and misused for the personal gains. पता चला कि तुम बने कह करके और बाद में तुमने कोल स्कैम कर दिया, रिसोर्सेज का स्कैम कर दिया, अपने ही ग्रिड को पूरा करने में एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर बने तो थे पुअर क्लास का वेलफेयर करने के लिए, वेलफेयर छोड़ दिया, अब तो पावर आ गया, अब तो तुम्हें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्टेटस चाहिए और बहुत बड़ा बड़ा ग्रिड तुम्हारे सामने आ गया। तो इसके लिए है, तो कह रहा है एथिकल एनालिसिस करना है यहाँ पे, तो कह रहा है पावर एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
power and moral responsibility, integrity versus corruption, power and humility, leadership and ethical governance, and conclusion. तो ये इतने डायमेंशंस आपको इसमें लिखने थे, पावर एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो लोग कहते हैं द ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को लेनी चाहिए. इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन, क्योंकि जब आपके पास पावर होगा, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द करप्शन. वहां पे आप पावर भी है तो वहां पर आपके एक्चुअल इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी का टेस्ट होगा. Okay, we all are know that the integrity is the high degree of honesty. Power and humility. True ethical leaders stay humble and severe, serve others instead of being arrogant. ऑफिसर बनने के बाद आदमी को लगता है कि अरे भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, हम ही हम हैं ना. ये जो अहम इगोइज्म है, एक तरह का इगोस्टिक पर्सनालिटी है आदमी का, तो आप तो काम करने को वेलफेयर के लिए. एंड ऑफिसर्स हैव ऑलवेज keep one thing in their mind, you are the only the servants of the society na. You cannot be feel that ki I am the boss of the society. bossism na आए, क्योंकि bossism आएगा तो arrogancy आएगी. Okay, now ethical behavior under power is true test of character, adversity test strength, but power test morality. देखो कितना बढ़िया लाइन है. क्या बताया, कह रहा but power test morality. A person ethics are revealed when they have control over others, and only those with integrity, humility, justice can handle power responsible. Okay, now the next question, I count braver. देखो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है, I count him braver who overcomes his desire than who overcomes his enemies. कह रहा है कि मैं उस आदमी को सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानूंगा जो अपने दुश्मनों से नहीं लड़ रहा है, अपने वांट को ही कॉन्कर कर रहा है ना. तो इसके लिए एक बेस्ट डायलॉग है, competition is always impersonal, competition is not something which compete with the others, because if the man have tendency, if the man have the mindset कि competition is always impersonal, then man always reform their personality, their grooming. Mans are focusing on their grooming. अब देखो इसमें क्या है भाई, Aristotle quote reflects as an essential ethical principle, self mastery is greater than external विक्ट्री. कह रहा है सेल्फ मास्टरी करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है, अपने अंदर के ग्रीड को कंट्रोल करना है, अपने अंदर के एनिमी को कंट्रोल करना है, अपने अंदर की निगेटिविटी को कंट्रोल करना है, अपने अंदर के करप्शन को कंट्रोल करना है. कह रहा है अपने अंदर के फेवरेटिज्म की वजह से जो आपके परसेप्शन में चेंज आ रहा है, कोई टिल्टनेस आ रही है आपके अंदर, किसी कम्युनिटी को लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के कोई बायसनेस है, कोई प्री नोशन है, उसको कंट्रोल करना है. That man is more braver than those who overcome his enemies. देखो अब इसमें क्या लिखना था, virtue, ethics and self control, ethical strength versus external strength, ethical leadership and decision making, modern ethical application. And you have to read the last line, ethical greatness lies in self mastery, not external conquest. Overcome one's own weakness, desire, temptations is the true test of courage and wisdom. A person with self-control leads to moral sound, fulfilling life, while one ruled by desire is never truly free. Okay, now the next question, the 11 number question is, the good of an individual is contained in the good of all. जो सबकी भलाई चाहने में रहे. देखो इसमें क्या लिखा है भाई इस क्वेश्चन में, this statement emphasizes the interdependency between individual well-being and societal well-being. It suggests that true happiness, success and fulfillment are not achieved in isolation but are deeply connected to the welfare of the कम्युनिटी. वो खुशी, वो गुडनेस उसमें नहीं है कि केवल आपने अपना ही भला किया, केवल अपने ही प्रॉफिट के लिए काम किया. आपको काम असली पीस, असली हैप्पीनेस जो है, रियल हैप्पीनेस आपको तब मिलेगी जब आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनके फुलफिलमेंट के लिए, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के डिजायर के लिए कुछ काम करते हैं. ओके, नाउ एथिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गुड. आप काम कब करोगे, जबकि आपके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गुड होगा. जब आप सोचोगे कि हमें जो भी करना है,
जो भी करना है उससे सोसाइटी को कुछ एड ऑन करना है, सोसाइटी के लिए करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर चार्ट ऑफ एम विथ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गुड. तो एथिक्स टीचर that the well-being of each person is linking to the overall well-being of the society. If a community has clean air, good health care and education, every individual benefits. Conversely, if the population and inequality rise, everyone suffers. देखो कम्युनिटी गोल्स की बात कर रहा है, ठीक. अब क्या कह रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन. जितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लोग कहीं पर जा रहे हैं स्प्लिट कर दे रहे हैं, अगर मान लो आपके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो किसी स्टेयर से चढ़ रहे हो वहां स्प्लिट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये तो मेरा शहर गंदा हो जाएगा, मेरी कॉलोनी गंदी हो जाएगी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेंडेंसी टू कॉपरेट भी करना है. हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है. द मेन स्ट्रीम पीपल्स हैव द टेंडेंसी टू कॉपरेट. एथिकल लीडरशिप एंड पॉलिसी मेकिंग. Ethical leadership and policy making, the leaders should be ethical, leaders should be working on the common goal and the common welfare, working on focusing on the common welfare. When the political leaders making any policy focusing on the vulnerable section who are more backward, who are not in the mainstream, you have to work for that person. Justice and fair distribution. Equitable justice करना है, fair distribution करना है. You are not biasing with some community and you are not unbiased with some community. You have some kind of perception. अगर आपके पास कुछ perception है किसी को लेकर के, तो आप distribution को hamper करोगे, जस्टिस को हैम्पर करोगे. एंड सेविंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट सेव करने की कोशिश करोगे. इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक लाइफ, गुड गवर्नेंस लिखा है. और फिर हमने एक कंक्लूजन दिया है, द प्रिंसिपल ऑफ टीच that individual success is not separate from the collective good. Ethical society thrive when the individuals contribute positively and individuals prosper when society ensure justice, equity and harmony. The path of true progress lies in the balancing personal with the social responsibility. These are the section. और यहाँ पर हमने आपको एक मॉडल आंसर भी दिया, आप इसे एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे. और लास्ट में सिर्फ आपको एक मैसेज है कि विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसकी स्ट्रक्चरिंग अपने माइंड में कीजिए, देन यू हैव टू राइट डाउन. ऐसा मत कीजिए कि डायरेक्ट जाएं और लिखना स्टार्ट कर दें. फर्स्टली यू हैव टू मेक योर स्ट्रक्चर कि व्हाट इज योर रोड मैप एंड हाउ यू कैन अचीव वन बाय वन टारगेट्स. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट.